Welcome everyone to the episode 2 of Make a Meet series. Mechanical Engineering Society VIT Sindri is back with yet another exciting session. Make a Meet is a series of insightful sessions with successful engineers with an objective to share valuable knowledge and to answer all your doubts related to academic, careers, interviews, and a lot more. Today we have Mr. Sushant Gupta sir as our guest personality. Sir has done his BTech in Mechanical Engineering from our own prestigious college VIT Sindri. He is from to the 2K16 batch. He is currently placed as a sales engineer. From Mechanical Engineering Society, I, Kaushik Vishwakarma, feels an immense pleasure to welcome you, sir, to this online meet. We'll be honored to learn from you. Yes, learning is a part, and we need to learn from everyone, each and every one of you, right? These five people sitting over here, from me, from the others who will be watching these videos, and they'll be giving their feedback. So everything is a process of learning. So, what would you like to have from me? Something very specific to, the placements, the curriculums, the academics, or anything, whatever you would like to have it from me. Please let me know. Uh, Sir, I would request you if you could brief us about your BIT journey, like how you used to work these 4 years in making your careers, and how you used to spend your time in BIT. If Yes. you could say. Uh, sure, that's a basic question every junior wants to know from the seniors. Uh, right? When I entered BIT, it was like uh, before that I have been into something like uh, away from my home, places where I can meet new peoples every day. Right? In the first year, what you see is you meet each and every new faces you see every day. So what you do कि आज इनसे मिला ये ऐसे थे, कल उनसे मिला वो वैसे थे, अलग अलग। यू सी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि ये इसके मन में ये मेरे को लेके क्या सोचता होगा, मैं इसको लेके क्या सोचूं एंड ऑल। राइट फ्रॉम देयर वहां से चीजें शुरू होती हैं फर्स्ट ईयर पे, एंड देन स्लोली व्हाट यू सी राइट आफ्टर वन एंड हाफ मंथ्स और प्रोबब्ली आफ्टर 2 months यू सी दैट कि नहीं, एवरीबॉडी इज मोर और लेस द सेम। हम सब झारखंड से ही है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यू सी झारखंड से ही। हाँ, बस थोड़ा बात करने की तहजीब एक तरह से बोल सकते हैं, वो सबकी अलग हो सकती है। हालांकि सोचने का नजरिया मोर और लेस सबका सेम ही होता है, बट स्लोली एंड स्लोली क्या होता है उसके बाद, यू गेट मोर इन्वॉल्व इनटू योर स्टडीज। the first month, the first and a half months, or you can say probably 2 months, you're like you're exploring BIT. However, the 600 acres of campus is too large to even explore in 4 years, but still you are exploring in those 2 months rapidly. But आप उसके बाद क्या होता है, you are like कि मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया है, लेट मी फोकस ऑन माई स्टडीज। सो पहला सेमेस्टर आते आते तक बहुत छोटा समय होता है, एडमिशन गेट्स वेरी लेट। सो यू हैव ओनली 3 to 4 months, एंड देन जब पहला सेमेस्टर आने लगता है, एवरीबॉडी इज लाइक पूरा पढ़ना ही है सुबह शाम एवरीथिंग। मे बी मतलब किसी भी टाइप के लोग हो, okay? नाउ द टाइम कम्स कि जब पहला सेमेस्टर खत्म हो गया, लेट मी फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल। टिल दैट टाइम क्या होता है कि लोग इधर उधर हाथ पांव मारते हैं, लोगों से मिलते हैं, समझते हैं कॉलेज को, बट जो रियल थिंग होता है कि क्या हम लोगों को अपने फाइनल ईयर पे जाके करना है, वो उस समय तक क्लियर नहीं हो पाता है। सो फर्स्ट सेमेस्टर तक केवल वो यही सोचते हैं कि मेरे को इतना सीजीपीए आ जाएगा, ये जीपीए आ जाएगा तो आई बी वेल फाइन। बट आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर दे रियलाइज कि ऐसे ऐसी चीजें आगे लेके मेरे को बढ़नी है। अब वहां पे क्या होता है, यू फाइंड यू स्टार्ट फाइंडिंग योर सीनियर्स। देयर विल बी फाइंडिंग योर सीनियर्स कि हम लोग किससे मिले, किससे जाने, एवरीथिंग कैसे आगे जाके मेरे को चीजों को चेंज करना है। There they'll be having mixed, I can say mixed answer to their questions. एक सीनियर उनको कुछ बताएगा, दूसरे सीनियर उनको कुछ बताएंगे, and there they need to think, the juniors need to think where they want to go। जो भी है वो चीज कैसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी चलता है, बट जो रियल जो सबका डाइवर्जेंस होता है क्लब को लेके, एंड लाइक आई एम नॉट गेटिंग दैट टर्म, लेकिन क्लब को लेके बहुत ज्यादा वो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। Yes, सो sir. यहाँ से स्टार्ट होता है क्लबबाजी, एक तरह से बोल सकते हैं। आई डोंट नो, डोंट टेक इट एज इन द नेगेटिव सेंस, बट देर आर वेरी मच क्या बोलते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है इन चीजों की भी।
So उसमें से among those 70 people you'll find 30 to 40 people, especially from mechanical. They get into good clubs और समथिंग कुछ ऐसा यूनिक करने का वो लोग अपना रास्ता पकड़ लेते हैं उस समय तक. एंड अदर 30-40 पीपल्स आर लाइक मीन्स उनको अभी तक नहीं समझ में आया कि अभी आगे हम लोगों को क्या करना है. वो वाली चीज होती है. सो स्लोली धीरे 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 जैसे ये लोग अपना अपना डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, राइट, तो टिल द एंड यू कैन से टिल द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जब फ्रेशर्स हमारा होने वाला होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. जनरली इसी महीने पे हमारा भी हुआ था 8 एंड 9 ऑफ अप्रैल एज फार एज आई रिमेम्बर. सो ये इस समय तक क्या होता है कि लोग सीनियर से एक्सप्लोर हो चुके होते हैं, अपने बैचमेट से एक्सप्लोर हो चुके होते हैं. देन अमंग देयर you can say the branch mates and all. So all these peoples, अब उन लोगों को पता है कौन क्या है नहीं है, मेरे को क्या करना नहीं करना. वहां पे चालू हो जाता है कि ये तो फर्स्ट ईयर है, राइट, अब मेरे को सेकेंड ईयर तक कैसे चीजों को आगे लेके जाना है. अभी तक मैंने कुछ नहीं किया. फ्रेशर्स में मैंने एक 70 पे अपना परफॉर्मेंस दे दिया, एक कैरियोके कर लिया, एक समथिंग डांस और समथिंग ये चीज कर लिया, बट व्हाट्स नेक्स्ट. सो वहां से धीरे 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 लोग अपने आप को समझना चालू करते हैं और वहां से एक बहुत लोगों के दिमाग में चलता है आई हैव टू लीड दिस, आई हैव टू लीड समवेयर, कहीं ना कहीं मेरे को लीड करना पड़ेगा. देन आई विल बी लीडिंग इन क्या बोलते हैं इन द फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज. जब मेरे को प्लेसमेंट्स आएगा तब मेरे को कहाँ पे एज मिलने वाला है, दैट यू गेट टू नो इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसके लिए फिर काम करना चालू करते हैं. सो सेकेंड ईयर आते आते फिर कई सारे इवेंट्स होते हैं कॉलेज में भी. लास्ट ईयर व्हेन आई वाज देयर बहुत कम हो पाए थे अनफॉर्चुनेटली. आई डोंट नो व्हाट वर द रीजंस फॉर दैट, बट काफी कम हो पाए थे. बट एवरी ईयर यू गेट सर्टेन चांस कि आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकते हैं. मे इट बी टेक्निकल इवेंट और मे इट बी समथिंग सोशल और एनीथिंग और आर्ट्स, एनीथिंग, कहीं पे भी आप अपने आप को परफॉर्म करके दिखा सकते हैं एंड देन यू कैन लीड. इट्स नॉट कि आप पढ़ाई से ही लीड कर सकते हैं कहीं पे भी. एनीथिंग यू डू यू कैन लीड इट देयर इटसेल्फ, मे इट बी इन स्पोर्ट्स और एनीवेयर जाता है. देन पीपल जो होते हैं जो कुछ अनप्लेस्ड रह जाते हैं, दे आर लाइक कि व्हाट्स नेक्स्ट. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ यू वर इन बीआईटी, इफ यू आर इन बीआईटी, तुम्हारे लिए नेक्स्ट ऑप्शन हमेशा खुला ही रहता है. व्हाट आई हैव सीन each and every people जो भी जितना भी मेहनत किया था, nothing goes in vain. I have seen people after a year even getting into good positions, maybe in a company or maybe in some government examinations. So that's the good thing about BIT what you have. Anyways, अगर ये this was for them who think कि उनको 4 साल में जॉब किसी भी तरह ले लेने का है. So that was it. That was really inspiring one, sir, as well as that's also the truth that must have been between among us. So, I want to ask you that how the 4 years of BTech reformed your life, like what virtues were added to you? Did engineering life also taught you something different than academics, like the personality development and others? Yes, everything. If you are seeing me here sitting in front of you and talking to you, ये 4 साल में बीआईटी नहीं मुझे सिखाया है. Yes. I passed my 10th from St. Michael's, Ranchi. I was उस समय सीजीपीए चलता था. आई डोंट नो आपके समय पे क्या परसेंटेज था. वाज इट परसेंटेज और सीजीपीए So बोर्ड it में? was CGPA in my time. ओके, सीजीपीए था, राइट. सो हमारे समय में भी वही था. आई गॉट 10 सीजीपीए एंड वाज क्वाइट हैप्पी कि अच्छा आ गया ये. मैं खूब उछल रहा था घर पे. एंड इट वाज माय फादर टोल्ड मी ये कुछ नहीं है, दिस इज नॉट सॉर्ट ऑफ एन अचीवमेंट. यस, दिस इज समथिंग गुड, बट ये तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन है ही नहीं. Yes. सो दैट डे आई रियलाइज्ड कि कितना चीजें दूर तक अभी करनी है, कितनी चीजें करनी है अभी दूर तक. दैट्स वन चेक पॉइंट यू कैन से. यू हैव टू गो अ लॉट मोर. सो राइट, जब वहां से स्टार्ट हुआ, मैंने 10th पे वो ले आया था. बट आई वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करता हो. आई डिड नॉट यूज टू टेक पार्ट इन एनी ऑफ द इवेंट्स और एनीथिंग एट माय कॉलेज लेवल, इवन सॉरी एट माय स्कूल लेवल. इवन 10th पास करने के बाद आई वेंट टू डीपीएस रांची. आई डिड नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज और एनीथिंग. सो टिल 12th आई वाज इनटू नथिंग. जब मैं कॉलेज आया यहाँ पे बीआईटी, सो आई स्टार्टेड टू टेकिंग सम ऑफ द यू कैन से द लीड्स Yes. and different activities and all. I'm quite happy
कि मतलब जो भी चीजें होती थी उस पर मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। द फर्स्ट जो मास बंक मैंने कराया था, मैंने क्लास 24 नंबर हॉस्टल के बाहर जो झंडा फहराते हैं वहां पे जाके बैठ गया था। लेट मी सी हु गोज आउट, इट वाज लाइक दैट कि सो दैट्स नॉट समथिंग वेरी गुड, बट यस दैट वाज समथिंग कि वहां से आपको एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे स्लोली। देन आई वाज द मैस इंचार्ज था एकदम स्टार्टिंग में। सो इट वाज लाइक कि आई वांटेड कि मैं जो भी चीज करूं वो अलग टाइप से करूं, लेट मी मेक अ चेंज इन। सो आपके जो एचओडी हैं अभी मैकेनिकल के, ही Yes, वाज sir. वेरी क्लोज टू मी। Even now he is very close to me. So he was that time the superintendent of hostel number 24. So at around 10:30 or 11 in the night, we uh, put a raid on the mess and we found कि ये रात में ही बना के रख देता है and all. So right from there I started taking decisions कि we were about to remove that, but मैंने बोला कि नहीं, इसको रहने देते हैं, अभी एक बार और चलने देते हैं, let me see what it does. So वहाँ से changes start हुए। I started making change for the hostels as well कि right from sanitations वगैरह से start होते हुए जो electricity चाहिए, बल्ब वगैरह चाहिए, जो भी equipments वगैरह चाहिए, everything should be there in our hostel. So वहाँ से धीरे धीरे change लेना start हुआ। तो अब होता ये है कि जब फ्रेशर्स वगैरह होने वाले रहते हैं, आई डोंट नो हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट द फ्रेशर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट कि वो Yes. कैसे होता है। सो इट इज लाइक कि 5 people आर चूजन फ्रॉम द कॉलेज, जो कि पॉपुलर फेस ऑफ द ईयर है, P5 बोलते हैं उसको। Yes. सो उसके लिए इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। सो मेरे को मेरे ब्रांच वालों ने ही चूज करके ऊपर भेजा कि इंटरव्यू के लिए जाओ तुम ब्रांच पे। बोला ठीक है जाता हूँ ब्रांच लेवल। जब मैं सीनियर्स को अपने इंटरव्यू दे रहा था अपने ब्रांच के मैकेनिकल पे, so that was one of the first interviews I was facing. May that be at a college level, but it was the first one. और जब मैंने वो इंटरव्यू दिया था, they all selected me and I was like कि मैं आज इससे पहले कुछ नहीं किया हूँ, I'll do, but I remember those 2-3 seniors with me, they said तू आग लगा देगा। I said ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, and I was like कि ठीक है आगे देखेंगे जो भी है। वहां से चूज हुआ, फिर आगे जाके कॉलेज लेवल पे इंटरव्यू हुआ, जब दो दो बच्चे हर ब्रांच से चूज होते हैं, देन फाइनली 5 बच्चे ही चूज होते हैं P5 के लिए। सो वहां पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया आफ्टर द इंटरव्यू एंड आई वाज लाइक कि ठीक है अब हो जाएगा। अब टॉप 64 में जब गया उस दिन, वहां पे भी सिलेक्शन हो गया। नाउ आई वाज इन द टॉप 12। अब इससे पहले नाउ द मेन थिंग कम्स कि अब आपको स्टेज पे जाना है। अब आप स्टेज पे जब गए हो, जिन जो पहले जा चुके हैं उनके लिए इट इज लाइक कि हाँ ठीक है, विल बी हैविंग वन मोर टाइम। मेरे लिए इट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड आई थॉट ये फर्स्ट ही कहीं लास्ट ना हो जाए। आई डिड नॉट नो what to do for the entertainment. I did not know how to dance. I did not know how to sing. At max, what I could have done was stand up. 2-3 मिनट का अगर कर सकता तो वही कर सकता था। बट देन सडनली आई थॉट कि ठीक है कुछ नहीं करते हैं, अपना स्पीच ही दे देंगे, कुछ स्टैंड अप टाइप का ही कर दिया था बट खुद पे। इट वाज लाइक दैट। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट एक्सपोजर। Yes, वहां sir. से मैंने चीजों को ड्राइव करना चालू किया। जब व्हेन यू मीट योर सीनियर्स एंड ऑल, जब उसके बाद क्या हुआ था कि मैं कहीं भी निकलता था, कुछ भी निकलता था, अभी आप लोगों के समय पे ये नहीं होते रैगिंग वगैरह एंड ऑल। उस समय दैट वाज द लास्ट टाइम, दिक्कत नहीं, इतने दूर तक पहुंचे वो भी बहुत था। सो 2 राउंड का वहां पे भी हुआ था। सो 1 राउंड आई क्वालिफाइड एंड द सेकंड वन आई डिड नॉट। सो आई वाज इन द टॉप 5 इन दैट। जब तीसरा साल आया हमारा, थर्ड ईयर, सो देयर यू डोंट हैव, वहां पे आपको बहुत ज्यादा गलती करने की गुंजाइश नहीं लगती, क्योंकि आप 2 साल सीनियर होते हैं बहुत लोगों से। आपको एक डर भी लगा रहता है कि अभी कहीं कुछ गलती हो जाए, कुछ हो जाए तो बेइज्जती ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो वहां पे आप फूक फूक के कदम रखते हो कभी भी। सो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उस समय तो नहीं थी, बट वी हैड इवेंट फ्रॉम फॉर मैकेनिकल। सो उसको 2 लोगों को एंकर करना था, प्रोफेसर्स लोग के लिए इवेंट हो रहा था। So your HOD, he chose me कि तुम आओ, तो you'll be anchoring all this session and all. So I with along with my friend went there. We anchored the whole session. That was a 5 days program. So वो मेरे लिए काफी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, जहाँ पे मैंने अपने आप को समझा। वहाँ पे देखा कि हाँ यहाँ पे भी कुछ बोला जा सकता है, कैसे किया जा सकता है एंड ऑल। आई डू दैट। माय थर्ड ईयर वी ऑर्गेनाइज अ कैंडल मार्च। यू माइट बी नोइंग, जब पठानकोट में हमला हुआ था उसके बाद
I was like, we'll have to do something. So that was something very, very huge we did in the college. उसके बाद in the final years, uh, third year के end में you can say placement cell का elections वगैरह होना and receiving good amount of votes and then certainly working for your own branch mates was something very good for me. I got that opportunity to work with some of the very good professionals of college. ऐसा नहीं था कि we are I'm the only one or we two three people are only the one in the our branches. हमारे college में और भी लोग थे, तो हम लोगों ने साथ में काम किया. There I got to know how professionally you can actually work. Yes, sir. So final year पे भी I was the hostel in charge. So वैसे वैसे धीरे धीरे जब when you start taking opportunities, देखो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी हमेशा फेंका जाएगा. नाउ इट्स अपॉन यू कि हाउ यू टेक इट. स्पेशली फॉर यू जूनियर्स की अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं रहती है कॉलेज में, बिल्कुल भी नहीं रहती है. लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट कई लोग उसको उस तरह से देखते नहीं है. नथिंग स्मॉल, नथिंग इज बिग. सब कुछ में अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है. दैट इज द थिंग. सो दिस इज हाउ दिस 4 years ऑफ बीआईटी जब मेरा था, आई चेंज माई सेल्फ फ्रॉम समवेयर नथिंग. जब तक मैं 12th में था आई हैड नथिंग. आई वॉज लाइक ए स्टूडेंट, हाँ ठीक है पढ़ाई वढ़ाई करता है, आई कैन डू यू कैन से मस्ती एंड ऑल एट माई क्लास लेवल एंड ऑल, लेकिन उससे ज्यादा नहीं था कुछ भी. But BIT changed me a lot. That Yes, was sir. VIT is surely a place that provides millions of opportunities. Just we have to grab about it. right. Uh, Sir, I have a question that is, since you are working as sales engineer in Campbell, India, so how do you find your work different from the 4 years of study that you did in BIT Sindri? Also, did the 4 years of BIT Sindri help you there in your work? You can say at a certain up to a certain level, but uh, practically speaking, there is what I'm doing currently. I use very less. We use actually very less of the technical knowledge in it. Yes, sir. The technical knowledge is involved, but not exactly to the things we were taught in our college. Just because I'm into sales and not into the exact core business, you can say the core field of manufacturing and all. So less of the technical knowledge is required as far as the things you have learned at your college level. Uh, Apart from that, the things that I learned when I organized freshers, Yes, the sir. time when I used to, uh, you can say, uh, get people for the meetings and all, the events and all, the activities and all, that is a great learning for me as far as the work I'm doing currently. So practically, not much of technical knowledge is helping me here out. Yes, but whatever I have learned through my professors, through their behavior, through the communication and all, that certainly helps. So ये चीज है. Sir, so how do you find the work here in your company? Is it more responsible, like the 4 years you have spent in VIT Sindri? What is the work difference? Like, you must be feeling more responsible here. Yes, and I have always liked the responsibilities. I, uh, I as an individual, have always wanted to drive the change rather than getting driven through the change. So, as far as sales is concerned, here is ये आपका एक तरह से आप एक entrepreneur हो and आप ही decide कर रहे हो how you need to take it forward. आपको सेल करना, you'll have to decide कि आप किससे बात करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे. Everything is upon you. Not कि when you are into a core segment or something in the manufacturing, you are given a certain set of works, आपको यही करना है, ऐसे ऐसे ही करना है. But when you are into sales, ये आपका business है. आप अगर आप क्या बोलते हैं, आप स्विगी पे हो तो आपको देखना है कि आपको बर्गर पे ज्यादा डिस्काउंट देना है कि पिज्जा पे ज्यादा डिस्काउंट देना है. Everything is decided upon you, how you'll be driving it. So this is something I like it very much, and it is not very much related to what I have been doing at my college level. Ha, there also I've been trying always ki I'll be driving the change rather than get driven through it. But certainly at when you are into sales, you are the business owner, you can say. So Yes, sir. you are driving the change. That's what I like it, and that is the reason why I choose this job. Yes, sir. I hope I'm clear. If not, you can ask me again. Yes, sir, you are clear. So moving ahead, I would like to take some questions. So they were asked from the students of VIT Sindri in our social media handle. Mhm. So there was a question related to startup. It has been asked by Kirti. Mhm. It is
If I have a startup idea, should I start working upon it immediately, or should I wait and learn some experience from the industrial world and then start working on it? That's a nice question. You see, what I believe, I'm a firm believer of a line called by said by Chanakya. जिंदगी बड़ी है, बट इतनी बड़ी नहीं है कि आप बार बार गलती करो और फिर सीखो. कभी कभी हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए. सो फॉर द स्टार्टअप, इट्स नॉट लाइक कि आप चालू कर दे और गलती करते जाए. जस्ट ऐसी आस कि साला स्टार्ट फॉर इट नाउ, स्टार्ट ना, आज स्टार्ट करो, राइट नाउ, दिस इज द टाइम. देखो, लर्निंग तो स्टार्ट कर सकते हो, नॉट वर्किंग ऑन योर स्टार्टअप बट वर्किंग फॉर योर स्टार्टअप. देयर आर टू डिफरेंट थिंग, वर्किंग फॉर द स्टार्टअप एंड वर्किंग इन द स्टार्टअप. सो वर्किंग, यू कैन स्टार्ट सर्टेनली नाउ. आप देखो आपको क्या चीज करना है स्टार्टअप पे. यू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स, पढ़ो वेयर दे मेक द मिस्टेक्स एंड ऑल एवरीथिंग. एक बहुत अच्छा लाइन लाइन मैं बोलूंगा, समथिंग सेड बाय अ पर्सन, कि जब तक आप 12th में होते हो, यू शुड हैव द एबिलिटी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. आपको ये स्किल्स कुछ कुछ है जो आने चाहिए. पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, पर्सनल फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करना है वो चीजें आना चाहिए. सो व्हाट यू कैन हैव इज द आर्ट ऑफ सेलिंग फॉर द स्टार्टअप एंड ऑल. व्हाट आई एम सेइंग, you should be having the skill of conflict resolution. You should be having how to interview, knowing how to interview actually, how to give feedbacks, how to be good at marketing, and certainly how good customer service you can give. These are something. So it is not that कि आप आज स्टार्टअप चालू कर दो उसके बाद आप सीख रहे हो. You can learn it now. Better late than never. अगर आपने 12 तक ये चीजों को नहीं सीखा, जो हाई स्कूल्स में बेसिकली बोला जाता है कि इन चीजों को हम लोगों को सीख लेना चाहिए, ठीक है, अभी तक हमने नहीं सीखा, बट राइट, अभी कॉलेज का टाइम है, आप उसको सीख लो. साथ ही साथ बाकी जो भी चीजें आपको एक, जब भी आप, अगर आपको रोटी बनानी है तो ऐसा नहीं है ना कि आपके लिए आटा गूंथ के रखा गया है. सो वहां से पीछे से जहां से आपको आटा लाना है या फिर नमक लाना है, पानी लाना है, जहां पे भी जो भी चीजें लानी है, उसको उसका प्रिपरेशन तो आप तब तक कर लो. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे इटसेल्फ, आज ही. There's nothing to wait for it. So there has been a question asked by Rehan. So since every student is going to explore different fields in codings, marketing, and others, so being a core student, what's on your opinion? Should we go to explore different fields, or should we stick to core studies and go for core opportunities? Uh, at present, what I see, there's nothing called as क्या बोलते हैं उसको, core study. ऐसा कुछ specific है नहीं. Everywhere we'll be finding something is related back to the coding and all. हाँ, अगर अभी तक चेंजेस नहीं हुए हैं, फिर भी आगे जाके वो चीजें चेंज होने ही वाली है. इट्स गुड कि आप इस चीज पे, इस टॉपिक पे आप बहुत अच्छे से सोच पा रहे हो. यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राइट, COE. You have got some very good courses, PLM courses and all. So start with that. आपको अगर कोडिंग पे ही जाना है, व्हाट वाज द Core क्वेश्चन स्पेसिफिक, opportunities. फिर से बता. देखो, कोर अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए इनिशियल लेवल में बहुत अच्छे होंगे Yes. फॉर ईच एंड एवरी पीपल, बट अगर आपको ग्रोथ चाहिए, यू वांट समथिंग वेरी गुड इन योर लाइफ, अगर आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, नॉर्मल लाइफ चाहिए, देन इट्स ओके कि आप कोर पे जाए, आराम से रहे, नो इश्यूज विद दैट. कुछ समय बाद जाके आप MBA वगैरह कर ले और एग्जीक्यूटिव एनीथिंग. सो वो करने के बाद आप एक मैनेजरियल पोजीशन ले ले एंड थिंग्स विल बी वेल एंड फाइन. एक स्टेबल लाइफ आप जी सकते हैं. बट when you take other opportunities, something called as coding and all, there you will be switching in companies continuously. You will be उस पे आपको कंटिन्यूअस लर्निंग की भी जरूरत होगी. ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल में रेफ्रिजरेशन एंड AC तक पढ़ लिया और उसके बाद यू कैन से SI इंजन्स पढ़ लिए, ऑटोमोबाइल पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, अब पूरा पढ़ लिया हूँ, अब जिंदगी भर बैठूंगा और कहीं पे बस पेपर पर साइन करूंगा और आगे निकल जाऊंगा. यू वांट दैट सॉर्ट ऑफ अ लाइफ, दैट इज डिफरेंट, वो आप ले सकते हो. बट इफ यू वांट कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ, देन यू विल हैव टू चूज सर्टेन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज वेल. सो कोडिंग एक अपॉर्चुनिटी वो देता है, लेकिन कितने हद तक लोग उसको कर पाते हैं, दैट्स अ चैलेंज. एक कोर स्टूडेंट के लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा, आई आई एम एक्चुअली नॉट अवेयर अबाउट दैट कि वो कितना फ्रूटफुल रह सकता है एक कोर स्टूडेंट के लिए. क्योंकि आप हद से हद 1 या 2 लैंग्वेज सीख के आप जॉब ले सकते हो, आप अच्छा खासा
you can get good packages and all, you can have a good life. But again, जब आपको growth चाहिए होगी, you will have to have something different. Yes, sir. And as far as sales, marketing, and everything is concerned, there you get to learn every time something new. That's the thing. You drive the change. Yes, sir. I guess that's really the correct answer for that. So Kundan has asked a question related to academics. So while we are preparing for other competitive examinations as well as we are preparing for semester examinations, how do we manage both at the in the same place? This question is, I think I have already answered कि अगर आप competitive exam की तैयारी कर रहे हो, I don't think you need to prepare for your semester exams. वो उसमें सब कुछ आ जाता है as far as I know. हाँ, कुछ ही अगर आप ऑब्वियसली अगर इसकी तैयारी कर रहे हो आप कम्पिटिटिव एग्जाम की, आपके लिए 1 से 2 दिन का से ज़्यादा का समय नहीं चाहिए होता है एग्जाम निकालने के लिए. When I was there in the college, I used to have कि एग्जाम्स आने वाले हैं, बिफोर दैट वी हैव ऑलवेज, मतलब हमेशा हॉलीडेज वगैरह कुछ ना कुछ जरूर होता था. सो हॉलीडे से आना है 2-3 दिन पहले, विल हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जाम्स. 1-2 दिन पढ़ना है, इतना आ जाएगा कि इज्जत बच जाएगी अपनी, वो वाली चीज. सो उसको दोनों को मैनेज करना इज नॉट अ चैलेंज. आई डोंट थिंक कि अगर कोई ये बंदा है जो इस लेवल तक सोच पाता है कि मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है एंड ही इज अ बिट इवन सीरियस अबाउट दैट, उसके लिए कॉलेज एग्जाम निकालना इज नेवर अ चैलेंज. That's very easy task. I think your every of your seniors जो second year, third year, final year किसी में भी होंगे, they are very much aware about it. So you don't need to worry. What was the name, Kundan? Yes, sir. Okay. So Saurabh has asked a question that in some point of life, our visions do not match with others' opinion. So what, on your opinion, should we expect their opinions or should we continue with our own vision? Every time the thing is you decide. Yes, sir. And you decide what is right for you. Even if my father told me कि मेरे को engineering करना चाहिए, it was not that कि नहीं तू engineering कर ही कर. Think about it. Then you will realize, slowly but eventually you will realize, this is why I am saying this, कि you need to listen others as well, because sometimes you are very inexperienced. Yes, sir. Maybe अगर आज से 4 साल पहले अगर मैं आपके पोजीशन पे बैठा हुआ रहता, यहाँ पे कोई और रहता, I would have asked the same question because I would not have had answer to this question. But when presently I have been looking at different people's, हर segments पे, हर department में, in different fields, right, in coding or anywhere, anything. It is certainly you decide, but you are always not too experienced to decide. सुनो सबकी, but करो मन की. But सुनना सबकी जरूरी है. कई बार क्या होता है कि अगर आपने एक ही रास्ता देखा है, लाइक अगर आपको मेन गेट से 24 नंबर हॉस्टल जाना है, आप मुर्गा रोड से ही जाओगे, राइट. अब जब तक आपने टाइगर रोड देखा ही नहीं है, वो कितना छोटा है, कितना अच्छा है, मे वो डिफिकल्ट हो सकता है, दैट माइट बी फाइन ईयर रहते हैं जो भी, अगर आपने देखा ही नहीं है तो आप कैसे जानोगे कि वो छोटा है कि नहीं है. इसलिए दूसरों की सुनना जरूरी है. हाँ, देन यू डिसाइड कि वो सही है कि नहीं है, उधर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. दैट्स टोटली डिफरेंट. दैट्स द थिंग. That's a true, sir. So the last question I would like to pick from the audience, that is, it has been asked by Anjali. So as we hear from elders that engineering life drains out our physical as well as mental health. So is this statement justified? And also if you could provide some tips so that we can avoid these circumstances. You don't need to avoid the circumstances because it's a myth. Yes, ये sir. सबसे बड़ा myth है कि आपको physically और mentally engineering बर्बाद कर देता. Where did this question come from? मतलब उसके दिमाग पे ऐसा क्यों आया? That's what I'm thinking. I've never heard that. I never realized even this. You get to sleep ample. आप BIT पे हो तब तो आपको सोने के लिए भी पूरा का पूरा समय मिलता है. नहीं भी मिलता है तो लोग निकाल लेते हैं. That's the thing. So and mentally किसी चीज का प्रेशर कभी रहा ही नहीं है. When I said कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको पढ़ना स्टार्ट कर देने का है, 4 दिन पहले भी कर लेते हैं लोग, मतलब इट्स नॉट फॉर एवरीवन. प्लीज स्टार मार्क लगा लेना यहाँ पे, इट्स नॉट फॉर एवरीवन. दोज पीपल जो काफी लंबे समय से पढ़ते हैं, यू कीप डूइंग दैट, दैट्स नथिंग. बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि आपको वो एग्जाम्स वगैरह नहीं निकलेंगे. आई थिंक दिस क्वेश्चन, ये दोनों हेल्थ पे बहुत ज्यादा सोचना है. देन
डोंट थिंक इट इज क्या बोलते हैं, आप एक इंजीनियर बन पाओगे। Yes, sir. एक इंजीनियर तब है जब ये सब चीजों को ओवरकम कर देता है, और वो कर देता है। उसको कभी ये चीज रियलाइज भी नहीं होता 4 साल में, लेकिन वो उससे बहुत आगे निकल चुका होता है। यू विल बी सीइंग पीपल लाइक जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड ऑल देते हैं, एग्जाम्स है, ये है, वो है, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट, वी नीड टू गेट दिस, वी नीड टू गेट दैट, ये अटेंडेंस, वो अटेंडेंस। मैकेनिकल, एज फार एज मैकेनिकल जहाँ तक कंसर्न है, फाइनल ईयर में आई डोंट थिंक यू विल बी विजिटिंग योर क्लासेस एज वेल, बट सबके सब एग्जाम निकालेंगे, Yes, sir. दैट टू विथ वेरी गुड परसेंटेजेस एंड ऑल। सो कोई, अब उनको पता है कि उनको प्रेशर कब लेना है, और उनको पता है कि प्रेशर कब नहीं लेना है। सो वो ऑटोमेटिक उनके अंदर आ जाता है, मे बी फिजिकल और मेंटल। अगर फिजिकल है तो क्या मतलब, जो 2.5 किलोमीटर फर्स्ट ईयर में मुर्गा रोड से लेक्चर हॉल तक आ सकता है हर बार, रोज के रोज, एक बार सुबह में फिर दोपहर में आ सकता है, जा सकता है, उसके लिए फिजिकल हेल्थ फिर बाद में मायने ही नहीं रखती है। वो खुद ब खुद बीआईटी में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जो रोज के रोज आलू खाएगा मेस में, वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। वो फर्स्ट ईयर आलू खा सकता है, लेकिन फाइनल ईयर में चिकन के लिए लड़ देता है, वो चीज़ है। सो दैट्स द थिंग। एंड मेंटली ऐसा कुछ है ही नहीं, नो प्रेशर। कभी मैंने ऐसा फील नहीं किया कि कॉलेज में बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया गया किसी चीज को लेके। Yes, sir. प्रोफेसर्स गिव यू टू मच ईज, एंड एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स, पूरे सारे डिपार्टमेंट में, नहीं थोड़े बहुत में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट नॉट दैट मच। एवरीबडी इज फ्री टू डू, सबके लिए यू विल बी सीइंग कि सबके पास बहुत फालतू टाइम है कॉलेज में, बहुत ज्यादा फालतू टाइम है कुछ भी करने के लिए। सो इट्स नथिंग लाइक दैट, डोंट वरी फॉर दैट, ऐसा कुछ नहीं है। Yes, sir. एंड इवन इफ यू हैव दैट, और मतलब यू वांट टू ओवरकम दोस सर्कमस्टांसेस, स्टार्ट थिंकिंग कि जो हर एक ब्रांच में एक एक बंदा देखो कि कैसे वो काम करता है। एनी एनी पर्सन ऑफ योर चॉइस जो कि अच्छा काम कर रहा है किसी भी ब्रांच में, आप उसको देखो, बंदा या बंदी जो भी है, हाउ हाउ इज ही और ही एबल टू डू द थिंग्स। देन यू रियलाइज उस पे ओवरकम करने के लिए फाइल से माय वे, सो दैट विल बी फॉर मी। यू स्टार्ट सीइंग इन डिफरेंट वेज, एंड यू रियलाइज कि आप अपने आप में डिसाइड करो ये 10 में से मेरे को क्या चूज करने का है, एंड व्हाट विल बी बेटर फॉर मी। Yes, sir. That's true. Thank you, sir. We are done with the questions. थैंक्स। On the behalf of Mechanical Engineering Society, I would like to thank you for providing your valuable time, efforts, and energy. So the audience will be highly related and feel confident after watching this video. Sure, So yeah, that's what I want. And wait, thanks a lot, yeah. Thank you so much. it was great connecting to you, and we surely learned a lot from this interaction. Always here. So thanks for the time that you have given us. We are very much delighted by it, and we'll be surely connecting with you soon. Thank you, Kaushik. Thank you, Kaushik and team, everyone. It was really nice talking to you and your questions, answering your questions. I may not be that clear, but certainly I'll be trying to be more clear or precise the next time we talk. Yes, sir. It was really very much insightful one.